Greetings students, here we are with the next video to the series for preparing Chandigarh JBT entrance exams. Let us start with the question number 1. It's a recapitulation from the previous video and the question is the purest form of natural water is. Options हैं number A rainwater, B river water, C pond water and D well water. So the correct option is rain water. The correct option is rain water. Coming to the second question, again a recapitulation of the previous video. Which disease is caused due to deficiency of vitamin D? And the correct answer is rickets. Third question, a very important one. Which planet is the hottest in our solar system? हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न. तो बेटे पहले इसकी सीरीज देख लेते हैं कि ये हमारे सन के कैसे साथ साथ में प्लैनेट्स आते हैं. You can learn one mnemonic. My very educated mother just served us noodles. M here stands for Mercury, nearest planet to the sun. Then V stands for Venus, जिसको हम हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं. Third is educated and E here stands for Earth. Next is M, Mars. Just J stands for Jupiter, the largest planet on the solar system. S stands for Saturn, the planet with the rings. U for Uranus, and noodles. N stands for Neptune. So these are the 8 planets of our solar system in the series from nearest to the farthest from the sun. अब भाई क्वेश्चन है विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट. बच्चों का दिमाग जाएगा मरकरी पर कि भी ये सबसे क्लोजेस्ट है सन के तो इट मस्ट बी द हॉटेस्ट. बट दिस इज नॉट सो. क्लोजेस्ट हमारा मरकरी है बट हॉटेस्ट वीनस है. ऐसा क्यों? बेटे वीनस हैव अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 464 degree Celsius and actually the major component present here is carbon dioxide. And carbon dioxide gas, the greenhouse gas, जो solar energy को trap करेगी, makes it more and more hot. That's why Venus, despite being the second planet in the solar system from the sun, it is hottest. याद रखना इस चीज. Question number 4. Which known metal is a good conductor of electricity? Known metals are generally poor conductors of electricity. But there is an exception, graphite, the allotropic form of carbon. It is one of the good conductors. That's why we use graphite rods during electrolysis. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर. The smallest functional unit of kidney is.
हमारी किडनीज में काम करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? एंड इट्स अ डायरेक्ट आंसर, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन. It is the filtration unit of kidney. Nephron filters out the waste from the blood. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे, क्या दिया था इसमें? न्यूरॉन. न्यूरॉन किसको बोलते हैं? It is the scientific term for a nerve cell which helps in the control and coordination. का स्ट्रक्चर कुछ तरह से ये सेल बॉडी, एक्सॉन एंड दिस इज द नर्व एंडिंग. ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं डेंड्राइट्स. थर्ड पार्ट में इसने बोला एल्यूलाई. एल्यूलाई कहाँ मिलेगा बेटे आपको? इट इज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. लंग्स में सबसे पहले एयर पाइप आएगा. एयर पाइप गेट्स ब्रोकन इनटू ब्रोंकाई. ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचिंग होगी, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स. और फिर इसकी फर्दर डिसइंटीग्रेशन होगी इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स. वो होते हैं एल्वियोलाई. और ये एल्वियोलाई रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज एल्वियोलाई पर होता है. लास्ट ऑप्शन थी विलस. इट इज अ सिंगुलर फॉर्म फॉर विलाई. हमें ये कहां मिलता है? विलाई हमें मिलेगा बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन में. कहां मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. कैसा होता है विलाई, देखते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन, it is the site for complete digestion of food. क्या समझे इससे? जो भी आप फूड ले रहे हैं उसके कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, they are fully digested in the small intestine only. Carbohydrates are broken down into glucose, proteins into lipids, and fats into fatty acids and glycerol. अब होता क्या है बच्चे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी वॉल्स में आप देखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. And these finger-like projections are known as villi. villi का काम क्या होगा? To increase the surface area of absorption of the food. चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 6. Which part of the plant conducts food? फूड बनेगा लीफ में. लीफ इज द फूड साइट ऑफ द प्लांट. लेकिन वो फूड हर पार्ट पर जाएगा कैसे?
प्लांट्स के अंदर होता है वास्कुलर सिस्टम, और इसमें होते हैं दो कंपोनेंट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। यही सारी चीजें प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर कराता है। बट अब देखो, ऑप्शंस में तो जाइलम फ्लोएम दोनों है, फिर कैसे पता चले कि फूड कौन सा पार्ट कंडक्ट कर रहा है? ध्यान देना, कंडक्शन किस किस चीज की होनी चाहिए? वाटर की, मिनरल्स की एंड फूड की। बोल के देखो बेटे, फूड, फ, फ, जाइलम फ्लोएम में से कौन सा फ साउंड दे रहा है? फ्लोएम। समझे? तो फ्लोएम क्या ट्रांसफर कराएगा? फूड, और जाइलम कराएगा वाटर एंड मिनरल्स। So the correct answer here is phloem. Which part of the plant conducts food? Answer is phloem. Next question. Question number 7. ध्यान से पढ़िए. Which is the largest gland in the human body? Straightforward answer is liver. Liver also acts as a gland. Which type of gland? Endocrine और एक्सोक्राइन? बताइए जल्दी से. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ध्यान देना, वर्ड है एक्सो, इधर है एंडो। एंडो में डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन्स रिलीज होंगे। इट इज डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन में डक्ट ग्लैंड टारगेट्स पर रिलीज होंगे स्पेशली। तो लीवर एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, तो इसकी सारी सिक्रीशंस लीवर के अंदर आएंगी। इट इज अ टाइप ऑफ exocrine gland which is duct gland. Got it? Next question please. Question number 8. Who proposed the theory of evolution by natural selection? Options देखिए बेटे, Mendel, Darwin, Lamarck and Aristotle. And we know that the book Origin of Species was written by Charles Darwin. किसने लिखी थी ये? चार्ल्स डार्विन ने। तो सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर होता क्या है जिसकी रेजिस्टेंस हाई हो? जो अलाउ ना करे टू पास इलेक्ट्रिसिटी। आंसर क्या आएगा बच्चे? वुड। क्या आएगा? वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The atmospheric layer used for the radio communication is? रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसीज का ट्रांसफर। जब ये एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेशंस जाएंगे, इनको लेना और देना, उसी से हमारे रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। एंड इट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11. Which gas is known as laughing gas? Laughing gas, अगर मान लिया छोड़ दिया हमने पूरे क्लासरूम में, एवरीवन इज गोइंग टू स्टार्ट लाफिंग ओनली। कौन सी होती है लाफिंग गैस? देखो, पहली आई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ओके। दूसरी है नाइट्रस ऑक्साइड NO, तीसरी कार्बन मोनोऑक्साइड CO,
and fourth is SO2. भाई कार्बन मोनोऑक्साइड एक हाईली पॉइजनस गैस है। अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास ज्यादा हो जाएगी, then we will not be able to add oxygen to the hemoglobin in our body, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फेंट हो सकती है, कोमा जा सकता है, या इंसान की डेथ भी हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड अगेन पॉल्यूटेंट, causes pollution, leads to some breathing problems। अब ऑप्शन रह गई ए एंड बी। इनमें से लाफिंग गैस है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड NO। NO, nitrogen dioxide is not a laughing gas। Question number 12, the instrument used to measure humidity is। ऑप्शंस देखते हैं। नंबर ए बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, थर्ड इज थर्मोमीटर एंड फोर्थ इज लैक्टोमीटर। बैरोमीटर किस लिए यूज होता है? टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर। लैक्टोमीटर टू मेजर डेंसिटी ऑफ मिल्क, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए। अब रहा हमारा हाइग्रोमीटर। आई होप यू गॉट द आंसर। इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बेटे देखिए, विच एलिमेंट इज यूज इन मेकिंग पेंसिल लेड। पेंसिल लेड जिसे आप काम करते हैं, लिखते हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? ग्रेफाइट। इट इज ग्रेफाइट। लगता है कि लेड लिखा है तो लेड होना चाहिए। नो, लेड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस, इट कांट राइट। ग्रेफाइट लीव्स द मार्क्स व्हेन यू स्ट्राइक इट ऑफ ऑन अ पेपर। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which blood cells help in fighting infections। इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए कौन से सेल यूज होते हैं? आंसर है बेटे WBC, white blood cells, which are also known as the soldiers of the body। RBC, इसका दूसरा नाम होता है बेटे एरिथ्रोसाइट, साइंटिफिकली जिसको हम बोलते हैं। WBC ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। और लास्ट है बेटा प्लाज्मा, इट इज द मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द ब्लड। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है? जो इसके बाकी सेल्स को अपने अंदर रखेगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्लाज्मा के अंदर रहेंगे। प्लाज्मा होल्ड्स इट टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ए न्यूटन, बी हर्ट्ज, सी पास्कल, डी जूल। चलिए फटाफट बताते जाइए, चारों किस किस की एसआई यूनिट्स हैं? न्यूटन SI यूनिट ऑफ फोर्स, पास्कल SI यूनिट ऑफ प्रेशर, जूल SI यूनिट ऑफ वर्क और यू कैन से एनर्जी। और ये बचा हमारा हर्ट्ज, विच इज द आंसर। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड बेटे, and its SI unit is hertz, symbolic representation HZ। Next question number 16, which gas is used for respiration by the aquatic animals। भाई respiration के लिए यूज होगी ऑक्सीजन।
एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, पानी के अंदर है, लेकिन वो भी ऑक्सीजन लेंगे। कैसे लेंगे? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which metal is used for making filaments in the electric bulb? बेटा आजकल तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब देखे हैं, वो तुम्हारे एलईडी या एलसीडी होंगे, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लास बल्ब, जिनको हम पहले येलो बल्ब भी बोलते थे। कुछ इस तरह का होगा, यहाँ एक मेटल रोड सी लगी होती है और इसके अंदर ऐसे छोटा सा स्प्रिंग लगा होता है, हल्का सा, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये बना होता है बेटे टंगस्टन फिलामेंट का। कौन से फिलामेंट का? टंगस्टन। So the correct answer is tungsten. Next question. Question number 18. Which of the following is a bacterial disease? Bacterial disease कौन सी है? बेटे देखो, मलेरिया, ये प्रोटोजोन डिजीज, प्लाज्मोडियम विवेक्स की वजह से होता है। डेंगी, डेंगी हमारा अगेन एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है, ये भी प्रोटोजोन डिजीज। चिकन पॉक्स, ये वायरल है, वायरस से फैलता है। तो बैक्टीरियल कौन सा रहा? टाइफॉइड। कौन सा है? टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the digestive system absorbs most nutrients? सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कौन सा पार्ट एब्सॉर्ब करता है? ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट ऑप्शन स्टमक, सेकंड स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड लार्ज इंटेस्टाइन एंड फोर्थ पार्ट इज इसोफेगस। बेटे अभी अभी हमने देखा था कि फुल डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देगा। द करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 20. Which instrument is used to measure electric current? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते हैं एम्पियर में। एम्पियर इसकी एसआई यूनिट, एम्पियर, एमीटर। कैन यू रिलेट? तो द करेक्ट आंसर इज एमीटर। तो बाकी तीन ऑप्शन है, वो क्या करती हैं, उनका क्या काम है? बेटा जी, वोल्ट मीटर is used to measure potential difference. Potentiometer measures EMF, the electromotive force, and galvanometer measures small changes in the potential. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. What is the chemical formula for water? H2O. H2O. Next question. Which part of the flower develops into fruit? होता क्या है बच्चे, फ्लावर फ्रूट कब बनाएगा? इट हैपन्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान दो, फ्लावर का जब हम नॉर्मल एक डायग्राम बनाते हैं,
बेटे ये एक नॉर्मल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर की। देखते हैं इसके कौन से पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आइए कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर पर। दिस कलर्ड पार्ट इज नोन एज पेटल। इसके बाद सेकेंड आता है हमारा सेपल, ये ग्रीन पार्ट। और उसके बाद बनता है हमारा मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको आप एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं। ये एंड्रोशियम है। इसके सब पार्ट्स देखिए, ये जो टॉप पे है बेटा, ये एंथर, लंबी ये जो डंडी है ये इसका स्टिग्मा, ये पार्ट रहेगा फिलामेंट। ये दोनों पार्ट्स, these are found in the androecium, the male part। और जब हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो फीमेल पार्ट में ये सबसे टॉप में है स्टिग्मा, देन स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर ये होंगे बेटे ओव्यूल्स। ये है हमारा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज नोन एज गाइनोशियम, विच इज नोन एज गाइनोशियम। सिंपल भाषा में हम इसको पिस्टिल भी बोल देते हैं, कार्पल भी बोल देते हैं। ये सारे नाम एक ही चीज के हैं, पिस्टिल बोल लो, कार्पल बोल लो या गाइनीशियम। ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। और एंथर और फिलामेंट ये हमारा स्टेमन पार्ट को यानी कि मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम। अब चलते हैं बेटे बैक साइड। क्या पढ़ा हमने? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है बेटे फ्रूट में, जो उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है सीड्स में। तो यहां पूछा कि कौन सा पार्ट फ्रूट बनाएगा? ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस is also known as marsh gas. It is made up of methane, and the formula for methane is CH4, and this CH4 is the simplest hydrocarbon. Correct answer here is methane. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। Which part of human ear helps in maintaining balance? बैलेंस कौन सा बनाता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। डायरेक्ट फैक्ट है बेटे, लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, which process converts solid directly into gas? डायरेक्टली इनटू गैस कैसे? देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, थ्री मेन स्टेट्स है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से सॉलिड बन सकता है। क्या हो सकता है इसका अपोजिट भी, यानी कि हम
लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दें। आपको हर इंटर कन्वर्जन की टर्म लर्न करनी है, कोई भी पूछी जा सकती है। यहां इसने पूछा है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, आते हैं उस पर भी। पहले सॉलिड से लिक्विड, देखिए बेटा, सॉलिड से जब लिक्विड जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग और साइंटिफिकली कहलाएगा ये फ्यूजन। इसमें आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब लिक्विड बनेगा और प्रेशर डिक्रीज करोगे। सिमिलरली आप लिक्विड से गैसेस पर जाओगे तो लिक्विड से गैस पे अगेन हम क्या बोलते हैं इसको, वेपोराइजेशन प्रोसेस, कई बार बॉइलिंग भी बोल देते हैं। और इसमें भी अगेन टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज हो। सिमिलरली गैस से सॉलिड में बनेगा तो आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे और इस गैस टू सॉलिड को हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, डिपोजिशन। अब सेकंड दूसरी टर्म्स पे आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस से जब लिक्विड बनेगी द प्रोसेस इज कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड बनेगा इट इज फ्रीजिंग, और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में आएगा इट इज सब्लिमेशन। होपफुली आपको सारे टर्म्स लर्न हो गए होंगे। तो द करेक्ट आंसर हियर इज सब्लिमेशन। दैट्स ऑल फॉर द डे। अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करो, मेन टॉपिक्स हैं, पेपर में 100% श्योरिटी आएंगे।